Hello everyone. Today we will discuss second part of producer behavior. We already discussed production function in two form. First is constant proportional production function and then is variable proportional production function. Here we discuss a return to factor and return to scale, which already discussed in my previous video. The constant proportion of factor production is known as a return to scale because it is a implement in a long term form, and second variable proportion, it is known as a return to factor. So in your chapter return to factor means it is a short term concept. We already discussed in previous video. In a short term period, when addition units of variable factor are implied with fixed factor, देन रिटर्न टू फैक्टर ऑपरेट. जब क्या है कि कुछ फैक्टर क्या है फिक्स हो, ओनली वन फैक्टर क्या वेरिएबल हो, तो वन मोर वैल्यू फैक्टर को जब फिक्स फैक्टर से कंबाइंड किया जाता है तो जो प्रोडक्शन के अंदर चेंजिंग आएगी वो रिटर्न टू फैक्टर के नाम से जानी जाती है. रिटर्न टू फैक्टर शोज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ऑफ ए गुड्स when only the quantity of one input is increased while other remain same. तो यहाँ पर टू फॉर्म के अंदर है. अगर हम न्यू फॉर्म के अंदर देखें तो इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, और अगर हम ओल्ड फॉर्म में देखें तो इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कहा जाता है. लो तो लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इन मॉडर्न फॉर्म के अंदर. वी लेट अस डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. Indirectly already we understand the meaning of law of variable proportion in the form of relation of TP and MP. Let's start. Law of variable proportion. Law of variable proportion means law state as we increase the quantity of only one variable, keep other input fixed, total product increase at increasing rate in the beginning, then increase at decreasing rate and then finally TP4. इसका मतलब क्या हुआ कि when one more variable factor is combined with fixed factor in initial stage, TP increase at increasing rate, then TP increase at diminishing rate, then in last TP start falling. तीनों को ही कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बन जाएगा. इसके थ्री फेजेस हैं. इन तीनों फेजेस को हम क्या डायग्राम के द्वारा भी एक्सप्लेन करेंगे और थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट फेज हमारा है टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. आपने जो पीछे हमने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर डायग्राम किया था, उस डायग्राम के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था इसके थ्री फेजेस हैं. वन फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज. वन फेज इंक्रीजिंग रिटर्न का, सेकेंड फेज डिमिनिशिंग रिटर्न का, थर्ड फेज नेगेटिव रिटर्न का. तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फेज को करेंगे. इंक्रीजिंग TP increase at increasing rate in initial phase as more and more unit of variable factor are employed with fixed factor. Total physical production increase at increasing rate, MP increase. Second phase में क्या था, TP increase at decreasing rate as more unit of variable factor are employed with fixed factor. Total product increase at diminishing rate. It's mean MP decrease but is positive. पॉजिटिव तो रहेगी ना. एट द एंड टीपी मैक्सिमम हो जाएगी, एमपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इसी को हम क्या करते हैं डायग्राम द्वारा देखते हैं. ये देखो सेम वही डायग्राम है. फेज 3 हमने यूज़ किया है. नेगेटिव पहली स्टेज के अंदर हमने क्या है, फर्स्ट फेज के अंदर क्या था कि व्हेन एमपी राइज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न. सेकेंड फेज के अंदर क्या, एमपी स्टार्ट फॉलिंग एंड टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट and MP is 0, TP is a maximum. Then in last stage TP fall as more unit of variable factor are employed with fixed factor. Total product start decreasing and marginal product become negative. So it means MP negative and TP start falling. इसके पीछे causes हैं. वो causes क्या हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें कॉजेज करने, क्योंकि कॉजेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. क्यों लागू होता है, सबसे पहला क्या है, रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. क्या होता है कि जब मशीन का साइज़ बड़ा होता है और उसके ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर लाइक लेबर क्या कम लगी हुई है,
तो इसका मतलब क्या है, लेबर कम लग रही है तो मशीन की साइज बड़ा है, तो इसका मतलब मशीन का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यानी कि फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे हम क्या उसके ऊपर क्या वन मोर लेबर को यूज करेंगे तो फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। जब प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग कम होगी, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगी। तो पहला कारण क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर मीन्स एज वेल एज वन मोर वैल्यू फैक्टर यूज विद फिक्स फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इंक्रीज टीपी एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी स्टार्ट राइज। दूसरा क्या है, एज वेल एज वैल्यू फैक्टर को बढ़ाएंगे, यानी लेबर को उस पर लगाएंगे फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो वहाँ पर लेबर डिवीजन हो जाएगी। लेबर डिवीजन मीन्स उनके अंदर एफिशिएंसी आ जाएगी। जो बंदा जिस काम के अंदर एक्सपर्ट है उसको वही काम दे जाएंगे। मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल फिक्स फैक्टर है, कॉमर्स की क्लास है, कॉमर्स के अंदर लेबर डिवीजन करना है, तो कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स पढ़ा रहा है, बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा है, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ा, तो वो अपने तरीके से एक्सपर्ट तरीके से लेक्चर को डिलीवर करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों को कम टाइम के अंदर ही ज़्यादा क्या आउटपुट मिलेगा, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर का भी एफिशिएंसी यूटिलाइज हो गया है और फिक्स फैक्टर का भी यूटिलाइज हो गया है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक बेटर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जिस कारण से फर्स्ट स्टेज को इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। अब डिमिनिशिंग कब आता है, जब इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर हो जाएगा, मीन्स जब फैक्टरों को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, मीन्स मशीन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे से इसके ऊपर वन मोर फैक्टर को इम्प्लॉयड किया जाएगा तो एक सीमा आ जाएगी जो कि मैक्सिमम लिमिट होगी। अगर उससे ज़्यादा हम लेबर को यूज़ करते हैं तो फिक्स फैक्टर का ओवर यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से क्या है, एमपी क्या है, स्टार्ट फॉलिंग, एमपी क्या है, फॉलिंग हो जाएगी, और टीपी स्टार्ट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। इस कारण से इंडिविजुअलिटी होने के कारण प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मशीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे लेबर पुट करेंगे तो एक टाइम आएगा उसका ओवर यूटिलाइज होने का, या तो मशीन चेंज कर दे, मशीन चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड को पढ़ रहे हैं हम। तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, मशीन का कोई अल्टरनेटिव ना होने के कारण, मोर लेबर पुट होने के कारण एक स्टेज ऐसी आती है कि उसका फुलर यूटिलाइज होने के बाद वो प्रोडक्शन तो बढ़ाती है लेकिन उसके साथ खर्चे भी बढ़ते हैं, टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। लेकिन जब उससे भी ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव रिटर्न हो जाएगी, मीन्स लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि एक लिमिट तक ही फिक्स फैक्टर को हम वेरिएबल फैक्टर से यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल को हम फिक्स से यूज़ कर सकते हैं। जब भी लिमिट क्रॉस करेंगे तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। मान लो कि एक क्लास के अंदर पहले दो बच्चे बैठे एक डेस्क पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बैठे तो प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन बढ़ेगी। लेकिन जब एक ही डेस्क पर 4 बच्चे बैठेंगे तो वहाँ प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, जिस कारण से क्या होगा कि एक लिमिट क्रॉस होने के बाद एमपी इज गोइंग टू नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट फॉलिंग। उनको बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 के ग्रुप बन जाएंगे, वो आपस में ग्रुप में काम करना चाहेंगे, वो उसके ग्रुप में नहीं करना चाहेगा, वो उसके ग्रुप में नहीं करना चाहेगा, इसमें डिस्प्यूट बढ़ता जाएगा आपस में और कोऑर्डिनेशन बिगड़ता जाएगा। कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा तो ना तो फिक्स फैक्टर का यूटिलाइज होगा ना ही वेरिएबल फैक्टर का यूटिलाइज होगा, तो टीपी स्टार्ट फॉलिंग। उनके अंदर क्या आ जाएगी, डिसएफिशिएंसी आ जाएगी, उनके अंदर एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं होगा, वो काम को दूसरे पर टालना शुरू कर देंगे, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। Thank you. Have a nice day. If you have any problem, you can directly approach to me.